Hello, my aspirants. I hope I'm not very late for uploading this video. As you all must be aware, if you are following me, that I was roaming around in the mountains. It was a 3-day trekking. तो वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था एंड एट द सेम टाइम आई वाज कंसर्न कि वीडियो आप लोगों का क्यू एन ए क्वेश्चंस को आई एम अनएबल टू आंसर एंड एज एग्ज़ाम आर नियर बाय आई वाज जस्ट कंसर्न कि कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए सो इसीलिए आई रिच्ड yesterday only and since then I'm just reading the comments and I'm trying to know कि आप लोगों का क्या exactly question है. So without any further ado, let's start our Q&A part 4. So the first question for this part 4 is how to deal with the pressure and how to stay consistent with the preparation. And I forgot to add another. There was another added question that how to deal with the pressure from Parosi. So my answer is for example pressure तो आपको होगा ही है and if you are preparing such a big exam pressure होना is very common. जितना कैंडिडेट होता है सबका खुद का एक तरीका है प्रेशर को डील करने का. इन माई केस whenever I used to feel the pressure I used to get a lot of anxiety. अभी that time when I was preparing I did not understand the meaning of anxiety exactly, but now when I read more about it अभी मुझे realize होता है कि I was suffering from anxiety because of the preparation. और एनजाइटी के साथ साथ आई यूज टू गेट पैनिक अटैक ऑल्सो लॉट ऑफ बहुत बार, मतलब 1-2 बार नहीं. एंड फ्रीक्वेंसी वाज कि हफ्ता में 2 बार जैसा तो आई विल गेट अ पैनिक अटैक और आई विल सफ़र फ्रॉम एनजाइटी. तो उसमें मेरा सिम्टम्स क्या होता था कि नो मैटर आई एम रीडिंग अ सेंटेंस और आई एम रीडिंग अ पेज रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन but still nothing will go in my head and all in my head was कि fear, doubts कि क्या हो पाएगा, वो क्या कर रहा होगा, what that person must be, मतलब वो वाला कैंडिडेट कैसे कर रहा होगा, am I enough, am I reading enough, am I approaching the right way, ऐसा करके बहुत सा आता है. and what happens if I do not clear the exam, because since I'm completing my masters since 2017 I was preparing for the exam and I started my preparation in the year 2017 and I was appearing seriously in the year 2020. Sorry, not exactly 2020 but 2019. So you can make a guess that 2017 से लेके 17, 18, 19, almost 2.5 years I have completely dedicated my preparation. ये इतना कुछ हो चुका था कि now by that time when I was appearing in 2019 many of my friends they already became officers who started the preparation with me. They already cleared the exam because they did not appear for the protest. So by that time आप सोचिए कि और कितना anxiety होगा. You are seeing people who started their preparation with you, now they are serving, now they are on their at their office. तो मेरा तो प्रेशर लेवल कुछ अलग ही था. द एडेड प्रेशर वाज कि एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज हुआ है. तो प्रेशर को हैंडल करना है. आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू से, बट इन माई केस व्हाट आई यूज टू डू whenever I feel that pressure coming rushing into my blood now, what I used to do, I will take my scooty and I will go for a ride. I always used to do that. I will मैं रास्ते में ड्राइविंग कर करके या राइडिंग कर करके I will listen to songs which used to motivate me. I will listen to instrumental music which is relaxing. And what I importantly what I did was कि I almost disconnected with the people. I mean there were my friends, like very few friends whom I trusted and with whom I was sharing things. So I almost disconnected with everyone who made me feel I would say lesser, who made me feel like you cannot do it or make me confused. I left in everyone and I did not used to discuss much with them. Even my friends who were preparing, I used to discuss very less things about my anxiety and all. So as you can make it out that there were only 2 ways how I dealt my pressure. First I used to ride a lot. Secondly I disconnected with the people who made me doubt myself. That is all.
Even my parents sometimes, my father and my mother, they were very supportive, but sometimes when they see me getting panic attack, they will say ki even if you do not clear the exam, it's fine, like do not make your life about it. So even their intention was positive, but it made me affect negatively. It was having a negative effect because I was feeling ki kya you people are saying this because you do not trust or do not have confidence on me. So what I did was, after clearing the prelim, I moved out to PG, where my pets were not around, my parents were not around. Hence, you should find your own ways to deal with the pressure, because every person have different ways. Like I said, some people will go for long drives, some people will listen to music, some people will talk to someone, their partners or their people whom they trust, their guides. Many ways to deal with it. You have to find out how to deal. I have shared mine. But before finishing this question, let me tell you one thing. Pressure it's bound to come. If you're preparing for this exam, pressure is bound to come, and if you're not getting any pressure, then probably you do not meant for this exam, or probably you are somewhere on the wrong path, I believe. So pressure is one of the important part of this exam. So take it and deal it in your own way. It is one of the most common thing to deal while preparing for this exam. Another thing is how to stay consistent. If you ask me one word to describe the whole preparation, then I would say it is consistency. It doesn't matter how many hours you are sitting on your chair, glaring at your books, but for me it is more important to stay consistent. What I mean by this is, for example, if you have studied 10 hours in a week, and but 10 hours in a week, but you have not studied for rest of the 6 days. But if you are studying 1 hours of quality of 1 hours quality study, बाय क्वालिटी आई मीन्स नॉट डिस्ट्रैक्टिंग बट फोकसिंग. अगर 1 घंटा का क्वालिटी स्टडी आपने कर रहे हो फॉर होल वीक, 7 दिन के लिए, देयर इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. कंसिस्टेंसी इज़ द की. I am telling you, I am repeating it again and again. Once who is consistent, he or she will get through the exam. This is what I experienced. ऐसा मुझे लगता है, because since 2017 to 2019, in this 3 years, I was not like focusing like anything. Yes, when exam is nearby, तब तो हर कोई focus करता है, हर कोई ज़्यादा पढ़ता है. But अब 3 साल आप क्या करोगे? You can't just study and just study. ये नहीं होता है. You have other life also. तो वो 3 साल में मैंने किया है, I stayed consistent. One thing which I did right way was consistency. To avoid any kind of confusion, I want to clear this, that with consistency I mean कि 2017 से लेके 19 तक कोई 3 साल तक सिर्फ पढ़ के ही नहीं बैठेगा. बिकॉज एडवर्टाइजमेंट नहीं निकला है, तो ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं निकल रहा है उस बीच में, तो 3 साल तक कोई बंदा ऐसा बैठते नहीं रहेगा. आई विल हैव माई ओन लाइफ, देन नॉर्मल लाइफ. फिर उसके बाद में इन बिटवीन 2017 to 19, when I had nothing to do and I had to only study, I searched for jobs, and I was working in private coaching institutes and private schools as a teacher. I was teaching political science, because I also need my pocket money. So in between those days, consistency से मेरा क्या मतलब होता था कि NCERT को हम बच्चा लोगों को स्कूल में पढ़ा हो रहा था. Luckily, I was also asked by the principals or headmasters कि आप geography को भी पढ़ा सकेगा क्या, history को भी आप पढ़ा पाओगे क्या. तो because of the preparation, I was already done and revised my NCERTs. तो मुझे एक बहुत लकी, फॉर्चुनेटली आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी कि जो NCERT में मैंने कंप्लीट किया है, वही NCERT को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस को
जो क्लास 8 to जो 12 का बच्चा है उनको मतलब आई गोट द अपॉर्चुनिटी टू टीच देम। तो उस बीच में क्या हो रहा था कि बिकॉज आई नीड टू टेक क्लासेस, हम और डेप्थ में अच्छा से एनसीईआरटी को आई वाज बार बार रिवाइज ही हो रहा था मेरा। तो एक मेरा ये बहुत लग अच्छा टर्न आउट हुआ। देन और उसके बाद में व्हेन आई कम टू होम आई मेड श्योर कि मेरा दिन ऐसा कभी मिस ना हो, लाइक इवन फॉर 1 hour, half an hour आई एम इन टच विथ व्हाट आई हैव, और आई वाज जस्ट eagerly waiting for the advertisement कि एक बार एडवर्टाइजमेंट निकल जाओ करके। बट whenever जब भी एडवर्टाइजमेंट नहीं निकलता है ना, उस बीच में यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन कि मैं 5 घंटा पढ़ूंगा, 4 घंटा पढ़ूंगा, यू डोंट गेट दैट मोटिवेशन। और एडवर्टाइजमेंट निकलने से भी 3 months अर्लियर इतना ही निकलेगा प्रीलिम का भी। तो उस बीच में कोई भी नॉर्मल पीपल विल गेट डीमोटिवेटेड और वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा। बट आई वॉज वेरी अफ्रेड कि कहीं मेरा कंसिस्टेंसी ना छूट जाए। तो आई ऑलवेज मेड श्योर कि आई एम ना 1 घंटा का होने से भी, हाफ एन आवर होने से भी आई एम स्टडिंग ऐसा करके। एंड वेन एवर आई एम काइंड एंड ऑल्सो आई एम इन अ काइंड ऑफ आई वॉज इन अ काइंड ऑफ जॉब जहाँ मेरा खुद का रिविजन ही हो रहा है। सो या आई प्लान्ड लॉट ऑफ थिंग्स। Another added question with this is how to deal with the parosika pressure. In my case, luckily, I did not face such problem because my home was located in such a place where parosika pressure nahi tha. Next question is new addition in the syllabus, sources and materials. See, I have already dealt with this answer. I'm not sure, but it was in my QnA part 2 or 3 video. You see it or you see it again and you will get the answer. Still for this video I want to repeat that जो भी आपका friends है ना, जो BA में ऑनर्स कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट्स लाइक जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, जो अरुणाचल का अंदर में, आई हैव आंसर द सेम इन द लास्ट वीडियो। आरजू अफिलेटेड जो एक सिलेबस होता है हर कॉलेज के लिए, आरजू सिलेबस बनाते हैं तो अरुणाचल में। तो ये जो ऑनर्स कर रहे हैं आरजू जब सिलेबस में बनाता है, तो जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का BA MA है, उसी का ही अंदर पे देयर इज दिस नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स एंड अरुणाचल पॉलिटिक्स, वो हो गया। BA ऑनर्स में क्या होता है आपका, नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री और अरुणाचल हिस्ट्री होता है। फिर जियोग्राफी भी सिलेबस में होता है आपका, नॉर्थ ईस्ट जियोग्राफी एंड अरुणाचल जियोग्राफी, ये मैंने पहले भी बताया है। तो आप do please connect with those people, come in contact with those who have done or doing their masters or graduations or honors in these mentioned subjects. उनका notes देखिए, उनका किताब मांगिए, because I was from I'm from political science honors, my masters and graduations. So for my PA मेरा जब पुराना वाला एग्ज़ाम पैटर्न था, हम खुद का एग्ज़ाम का अभी जो पैटर्न यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब जो ऑनर्स सब्जेक्ट लुक का, वही नोट को लेके आई वाज स्टडिंग। लेकिन जब मेरा समय में आया तो ये जो रिसेंट एग्ज़ाम वीक क्लियर, उसमें नोटिस का नहीं था, लेकिन जब लास्ट वाला में था आई अप्रोच द सेम स्ट्रैटेजी। इसलिए दिस टाइम ऑल्सो यू कैन ऑल्सो डू द सेम। एंड आई एम वेरी श्योर कि एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट हिस्ट्री और अरुणाचल हिस्ट्री जो नया एडिशन हुआ है, मतलब नॉर्थ ईस्ट एंड अरुणाचल का, ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दे विल प्रोवाइड द नोट्स फॉर इट, उनको भी आप यूज़ कीजिए। अगर वहाँ से सेटिस्फाई आप नहीं है, देन यू गो फॉर जो हमने कहा है कि जो ऑनर्स वाला बच्चा का कांटेक्ट करके उनका बुक खरीदिए। एंड इफ़ यू डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स हु आर डूइंग सच प्रोग्राम्स, लाइक उनका वो कोई ऑनर्स नहीं करे, आप किसी को नहीं जानते हो, या फिर यू आर नॉट कंफर्टेबल आस्किंग देम, देन प्लीज़ विजिट द बुक स्टोर्स। उनको पूछिए कि ये अरुणाचल का जो BA ऑनर्स लुक का ये सब का हमको किताब दीजिए करके, सेमेस्टर 1, 2, 3 का क्या क्या है, जो बुक का जो स्टोर में है दे विल गिव यू, और वहाँ से आप अपना मिला सकते हो कि दिस आई नीड टू स्टडी, और वो बहुत शॉर्ट में ही होगा। The third question is, someone have asked me that he or she have scored very less in class 12 board exam, so he or she is having a doubt whether they will clear the exam or not. There will be many candidates who thinks the same. I used to think the same. Many of my friends used to think the same, that class 10, 12 में इतना खराब मार्क्स आया, BA में भी इतना खराब मार्क्स आया, will I able to clear the exam? Am I good enough? So, and many toppers are preparing for the same exam. Will I stand against them?
ऐसा बहुत होता है, डू नॉट वरी. When my friends who knows me since school days, they knows me कि क्लास 10 का मेरा मार्क्स कैसा था, क्लास 12 पे मेरा मार्क्स कैसा था. आई स्टडीड आर्ट्स, 11-12 आर्ट्स. तो क्लास 12 में भी बहुत मेरा ख़राब मार्क्स था. that college maybe I hardly got the admission, and my class 10 marks was also very bad. If I'm not wrong, my class 10 marks bhi abhi kahan chala gaya pata nahi, but I have to search, but it was in 40s, like it must be around 40s, 48, 49, something like that. And my class 12 marks must be around 50 or 49, I'm not sure, but it was very, very bad, but very bad. And like I already shared that I was not a good student. I was always roaming around with my friends. I was not studying at all, and no one will consider me sincere. I was a very bad student. By bad I mean I was very insincere. Like I was never someone who will be like यहाँ बहुत पढ़ेगा, class attend करेगा, nothing. And government school में you know what happens, no one pays any attention, and you are on your own. So do not worry about it. But yeah, college में when कब मेरा change आया, when I got to college, many of my friends were discussing कि आजकल क्या होता है कि ना फर्स्ट ईयर से ही आप अपना ऑनर्स ले लेते हैं. बट ड्यूरिंग आवर टाइम व्हाट यूज्ड टू हैपन, हम लोगों का फर्स्ट ईयर का मार्क्स पे डिपेंड करता था हाउ मच यू विल गेट. उसके बाद में ऑनर्स देना है नहीं देना है तब डिसाइड होता था. So even in my first year, I was not very, because बहुत तकलीफ से एडमिशन मिला था. प्रिंसिपल वॉज नॉट हैप्पी कि 49% और 50, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ तो ऐसा था कि बॉर्डर लाइन में था. एंड माई प्रिंसिपल वॉज नॉट रेडी टू गिव मी द एडमिशन, बट आई रिक्वेस्टेड, एंड आई वॉज लाइक कि सर इफ़ यू विल नॉट गिव मी द चांस, दैन अगेन क्या हम लोग एवरेज जो स्कोरर है उसका कुछ नहीं हो पाएगा क्या, काइंड ऑफ लाइक. आई थिंक मैंने बहुत अपना एकदम प्यार से आई रिक्वेस्टेड हिम, एंड प्लस प्रोबेबली वैकेंसी था उस समय में, सो आई गॉट माई एडमिशन. इवन देन ऑल्सो कॉलेज फर्स्ट ईयर में आई वॉज नॉट समवन जो फिर से अगेन क्या करेगा, आई डिड नॉट नो. आई वॉज बिजी इन स्पोर्ट्स, आई वॉज बिजी इन कल्चरल एक्टिविटीज़, दोस्त लोग के साथ में मस्ती मारना. लाइक आई हैड नो प्लान्स कि करना क्या है बोल के. आई वॉज जस्ट स्टडिंग. When आधा साल ख़त्म हो गया, देन माई फ्रेंड्स स्टार्ट टू डिस्कस कि ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, हमको आगे जाके करियर में ये बनना है, ये एग्ज़ाम. फर्स्ट थिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आई थिंक अगर आप लोग सुन रहे हो तो. फर्स्ट ईयर तक तो मुझे पता भी नहीं था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ APPSCCE. आई डिड नॉट नो. मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि CO होता है, ये बनता है, तो आई डिड नॉट नो. आई वाज लाइक कि ओ गॉड, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है. बट मेरा धीरे धीरे वेन एवर आई यूज टू हियर देयर डिस्कशन ना, आई यूज टू फील आउट ऑफ प्लेस, एंड आई फेल्ट लाइक कि नो, मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा, एंड दिस कांट बी कंटिन्यू लाइक दिस, और एल्स आई विल बी अनएम्प्लॉयड इवन आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशंस. मेरा कुछ होने वाला नहीं है बोल के. तो जस्ट टाइम रहते ही आई started to study well, not study well, but I somehow shifted my focus कि अभी थोड़ा कंट्रोल में आना पड़ेगा. So जब आधा साल बचा था, आई पॉलिटिकल साइंस को मैंने बहुत ध्यान दिया, क्योंकि आई फेल्ट लाइक कि दिस इज़ द सब्जेक्ट जो मुझे समझ में आता है. एंड माई कजिन्स दे ऑल्सो advised me to take political science or history if I have any interest in civil service. I had no interest in civil service. ऐसा नहीं था, लेकिन हमको आइडिया ही नहीं था कि होता क्या है. एंड आई फेल्ट लाइक इट इज़ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ अरुणाचल प्रदेश. कहाँ यहाँ से मेरा क्लास 10-12 पास नहीं हो रहा है, BA में आई एम स्ट्रगलिंग, तो कहाँ से आई विल क्लियर द टफेस्ट एग्जाम of this state, it is not possible करके. But still जब political science honors के लिए second year में when I joined the honors ना, तो उसमें इंटरेस्ट आ गया. एंड वेन एवर आई यूज टू टेल माई फ्रेंड्स एंड माई रिलेटिव्स एंड माई पेरेंट्स दैट आई एम डूइंग ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस, तो उनका भी एक होप निकलता है ना कि ओ शी इज़ एटलीस्ट डूइंग समथिंग बोल के. तो उसी में मेरा इंटरेस्ट हो गया. मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स वे सेइंग कि RGU जाना है. अगेन आई हैड वेरी लिटिल आइडिया कि RGU जाता भी कैसा है करके. बट अगेन आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन. बाय द टाइम आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई थॉट कि एकेडमिक्स में ही जाना है, लाइक टीचिंग में जाएगा, मास्टर्स ही कर लेता है, उसके बाद B.Ed कर लेगा. आई वेंट फॉर माई मास्टर्स. वहाँ पे भी आई डिड नॉट डू वेल, बट आई वॉज स्ट्रगलिंग. ट्राई तो किया मैंने, मतलब आई वॉज एटलीस्ट सिंसियर.
उसके बाद में आई हैड दिस आइडिया ना, जब आप आरजू जाते हो तो क्या करना है, ये प्रीलिम क्लियर कर रहा है, वो कर रहा है, एंड माई फ्रेंड्स क्लियर द एग्ज़ाम्स, तभी मुझे आइडिया हुआ. एंड वन ऑफ माई सीनियर ऑल्सो एडवाइस मी यू क्लियर द एग्ज़ाम की योर मतलब यू हैव द कैपेसिटी, मतलब पोटेंशियल तो है, तो एटलीस्ट यू ट्राई फॉर इट करके. तो यही से ही मेरा कहानी शुरू हुआ सिविल सर्विस का. एंड अभी मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ की person like me who never studied well in school days, who did not study well in also in college days, and comparatively studied in my master's days, if I can with the background of like me, you can definitely do well, you can easily crack the exams. And let me mention you one very important thing. During my school days and my college days, in my school days who were toppers, and in my toppers in their whole school academic life, and who were toppers in their college life, toppers in master's life, many of them could not clear the exam. And I'm not demeaning anyone, but they have chosen another path. So but it's not like they have chosen another path and they did not appear for this exam. They wanted badly, they prepared with me, and but still they could not clear. So they choose the other professions. So like I said कि चाह के भी वो लोग क्लियर नहीं कर पाया विद देयर एक्सेलेंट एकेडमिक मार्क्स जो उनका रहा है अपना एकेडमिक लाइफ में, इतना अच्छा टॉपर्स बन के भी. सो इसलिए हम बोलते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि योर मार्क्स डिड नॉट डज नॉट डिफाइन योर कैपेसिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम. बहुत सा सर्कमस्टांसेस, बहुत सा चीज़ मैटर करता है, सिर्फ मार्क्स, एकेडमिक मार्क्स मैटर नहीं करता है ये एग्ज़ाम के लिए. एंड ज़्यादातर तो क्या होता है, आप दो तरह का टॉपर्स होते हैं. एक होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड होते हैं तो अच्छा स्कोर करते हैं. दूसरा होते हैं बहुत तकलीफ से रगड़ रगड़ के पास करते तो टॉपर्स बनते हैं. सो मार्क्स डू नॉट डिफाइन एनीथिंग, डज नॉट डिफाइन एनीथिंग. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू से इज़ दैट, वो जो 3 इडियट मूवी में एक डायलॉग है जो आप लोग इसको सिर्फ मूवी का डायलॉग है बोल के मत सुनिए. In my 3 years of preparation, I have learned this and I have applied this in my life कि when you are preparing ना, दिमाग में सक्सेस हम एग्ज़ाम पास होगा, सक्सेस होगा ऐसा सोच के do not prepare your exam, do not sit with this thought on your chair. वन लाइन जो अभी मैं बोलने वाली थी कि सच में जिसको आपको सीरियसली लेना है इज़ दैट, आप सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो और सक्सेस आपका पीछे झक मार के आएगा. दिस इज़ वेरी 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 ट्रू. मुझे क्या लगता है कि व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आई वाज स्टडीइंग जस्ट टू स्कोर गुड मार्क्स. हमको सिर्फ रट्टा मारना है और इसको हमको याद करना है, इसका पीछे क्या मीनिंग हो सकता है, ये हमको लाइफ में क्या काम आ सकता है. आई नेवर थॉट अबाउट इट. लेकिन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, हम जैसे कि कुछ भी चीज़ को हम NCERT में भी हम पढ़ रहे हैं, आई वाज लाइक ये तो कॉमन सेंस चीज़ है. एज अ ग्रेजुएट हमको तो ये चीज़ भी जानना चाहिए था, ये भी काम आएगा. ओ अच्छा, इसलिए मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, इसलिए अर्थक्वेक आते हैं क्या, ओ गॉड ऐसा करके. और अच्छा इसलिए पंचायत का ऐसा था, अच्छा पहले हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, ओ इसलिए हम लोग का ऐसा वो कास्टिज़म ये सब है ना. ऐसा हम खुद को समझा के कि एग्ज़ाम का तो ठीक है, लेकिन आप एज अ एक इन्फॉर्म्ड पर्सन बनो और ये आपको फ्यूचर में काम आने जा रहा है ऐसा करके. और वट एवर आई यूज़ टू लर्न, आई ऑलवेज यूज़ टू डिस्कस विद माई सिबलिंग्स, माई पेरेंट्स, सो दैट आई कैन ऑल्सो शो देम कि देखो ऐसा ऐसा होता है, दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. ऐसा आप इन्फॉर्म, प्रिपरेशन तो चल रहा है ना, लेकिन हम एक्सेलेंस के पीछे क्यों भाग रहा था कि हम खुद को एज अ पर्सनैलिटी हम मेरा डेवलप होते जा रहा था कि ओ अर्लियर आई वाज लाइक कि कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी कुछ बात बोलने से नथिंग यूज्ड टू गेट इन माई हेड. बट व्हेन आई वाज, जब हमको उसका रूट कोज को उसका जो कैसा बोलेगा बेसिक्स को हम जब समझ में आ गया, जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आई एम लाइक कि न्यूज़ में भी मेरा इंटरेस्ट हो रहा है, बाहर में क्या बात हो रहा है वो मुझको समझ में आ रहा है. वो ऐसा जैसे कि हम लोग का ऑनरेबल CM सर, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का कुछ स्कीम आ रहा है, कुछ बात चल रहा है, कोई स्टूडेंट यूनियन का कोई मीडिया ब्रीफिंग कर रहा है और
कोई एनजीओ कुछ बात कर रहा है, वो ऐसा करके आई वॉज रिलेटिंग थिंग्स जो हम बुक्स में पढ़ रहा था प्रिपरेशन समय में. सो तब हमको याद आया, हम खुद एक पोस्टर भी छोटा सा मेरा टेबल में हम लिख के भी रखा था कि सक्सेस के पीछे पीछे मत भागो, आप एक्सेलेंस के पीछे भागो करके. सो इसलिए सक्सेस जग मार के पीछे आएगा. एंड इसीलिए ये बात को आप आराम से ध्यान दो और ज़्यादा मत सोचो कि हमको इसको भी करना है, हम क्या क्लियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये एग्ज़ाम को. एक क्लीन स्लेट का साथ में शुरू करो. ऐसा सोचो कि अभी आप सब एक प्लेटफॉर्म में है करके ना, यहाँ पे कौन कैसे स्ट्रेटेजाइज करता है उसी का ही अभी इसमें जीत होगा करके. Hence, my conclusion is your marks does not define anything. It does not say anything about your capacity of clearing the exam.